It, my leg. Then your GST too, how you develop.
Hello, hello. I'm audible. I'm audible. Yes, sir. Okay, sir. Somebody just replied yes. Can you please confirm if I'm audible? Yes, sir. Yes, sir.
କଣ ଆସୁନି? Betul. Mari kita nanti kalau mulai kita tunjuk. Habis. And my senior colleagues, my dear friends, and all colleagues who have joined us through Zoom, a very good afternoon and a warm welcome on behalf of Vigilance Department Corporate Office to the seminar on the topic Cyber Security. Cyber Security, which is a looming threat in today's world of technological advancement, where we are vulnerable to a cyber attack anytime. Without warning, we may risk losing our personal and confidential data due to breach, leading to financial and other losses. Our Vigilance Department, with the help of Systems Department Corporate Office, has taken the initiative to enhance our knowledge to be on a safer side. Let us work together to stay informed, protect ourselves, and build a safer digital future for us at workplace as well as at home. Stay alert, stay secure, and take charge of your online safety. With this note, I would like to welcome the dignitaries onto the dais. Shri Ramesh Chandra Joshi sir. I would also request Shri Navin Damji, CEO and founder of GISPL, our speaker for today, seminar onto the dais. Thank you, sir. I would now request Shri Mani Ravi sir, GGM Systems, to welcome the dignitaries with bouquet. Thank you, sir. Coming to a brief introduction about our speaker. Sir Shri Navin Damji is the CEO and founder of G Info Technological Solutions Private Limited, commonly known as GISPL, in a seat in Empanel organization specializing in information security, auditing, and cyber security services. With a strong reputation for delivering top-notch security services, the company has gained recognition for its role in safeguarding critical infrastructural and digital assets for both government and private sectors. GSPL provides comprehensive cybersecurity services, including security compiling consulting, security testing, security maintenance, and resource augmentation, IoT and SCADA security, cyber forensic, training and ransomware assessment and protection. Its expertise span across sectors like defense, manufacturing, IT, insurance, and finance, to name few, with a notable clients such as Bajaj Finance, Aztak, Usha, Panasonic, HCL, and Naukri.com. The firm is also well regarded for its partnership with Big Four consulting firms, further cementing its status as a trusted leader in cybersecurity domain. Dr. Navin Damji, the founder and managing director of GISPL, is a seasoned professional with over 2 decades of experience in cybersecurity. He is a PhD, MSc in cyber forensic and infosec, and a multiple certifications including CISA, ISO 27001 LA, and PCI DSS, to name few. Under his visionary leadership, GISPL has received multiple global accolades, including listing in Forbes as the most admired company in India and appreciation from the US Air Force for strengthening the security posture of their applications, making the company a pioneer in the field of cyber security. With this, I welcome
Shri Navin Dam sir to NALCO. I would now request Shri Mani sir, GGM system, to deliver the welcome address to the forum. Good evening, respected Director Finance, Ramesh Joshi sir, Mr. Naveen Dham, founder, I won't say founder in today's occasion, of course, he's the cyber security evangelist. That is what he's here for. The importance of this particular topic stems from the fact that we are today living in an era where everything around us is digitalized. And day in and day out, we in our own department in IT, we see the kind of threats that we are exposed to. There is an unbelievable amount of threats that actually try and access us from the outside, mostly malicious threats. But more important than that, because that is something that we are designed to protect. But more important than that, it is, to use a word that Mr. Naveen Dham was sharing with me in the afternoon today, the firewall within inside, that's the users. We have to make this stronger. And the only method to do this is, of course, education, because it's very difficult to interact with all the 5,000 odd employees and try and tell them that what is good and what is wrong. No better way to bring in an expert who can speak on this subject and also try and demonstrate to you cases which obviously they would have seen over the period of time, which impact us. And of course, it's a serious impact because we get to read this on a daily basis in the newspapers. Today's session, thank you, Mr. Naveen Dham, for having graced this particular occasion to speak on this topic of cybersecurity. And apart from you over here in the auditorium, we have our employees who have connected from our sites at the Smelter and Power Complex, at the Mines and Refinery Complex in Damanjodi, Visakhapatnam, and other regional offices. And of course, there are some who are not over here, but they are connected online from within the office itself. Without much ado, I think I'll leave the floor to you so that you can start and educate us, and also, of course, bring out some very interesting topics for us to chew upon at the end of the session. Thank you very much. Thank you, sir. Sir, just a minute. I would now request our Director Finance, sir, to kindly felicitate the speaker for today's seminar. Thank you, sir. I would now request Sri Ravind Damji to take over the floor. Thank you, sir. Good evening, everyone, and thanks to the entire NALCO family. I would say NALCOnians, right? And Director Finance, Mr. Ramesh Chandra Joshi, thanks to you as well for a warm welcome. And with that, I would like to start the session. So let me grab the instrument. So mic, movable mic. Yeah. So I have to stand here and. Okay. So movable mic. So today we'll talk about information security awareness session. So though you people know that we are talking about cyber security, but the main concept
starts from information security. Okay. So main concepts start from information security, right? So what is information security? Can anybody tell me? Do you have that mic that people can? Can you? Yeah. So it's working. So you know what is information security? Anyone? Anyone? No. No worries. So information, information. Let's say I pick up piece of paper and I write your name. Information has taken birth. So let's say I have written Naveen. Otherwise it was a plain paper. But now when I have written Naveen, it is now information. This paper carries an information about my name. Now, if I write my credit card number on this, it will become a little bit confidential. Now, if I write my CVV number and expiry date, all the details, now it has become confidential information, right? So this is how information changes faces. Firstly, it was information which was a public information. Now it became confidential information. Then it became strictly confidential information, right? Because I have written everything about my credit card. Now anyone can use that information, or he can swipe my card anywhere because he has got everything, right? So, but OTP, you must be knowing that OTP, there are some sites where without OTP also, when you go do any international transaction, without OTP, you can swipe my card. So, this is how the information will be used. Now, this information has taken birth. When this takes birth, we have to make sure that we put the required controls on that particular information. If it is a public information, you can put it anywhere. Website पे भी डाल दो, कोई बात नहीं. Okay, one more thing, like people told me that you should use Hindi also. So I will use Hindi as well, because some people may not be comfortable in English. Because family members are also joining, I guess, right? So information has taken birth. अब information जब जन्म ले लिया उसके बाद we have to name that information. Like you must have seen in tenders or any confidential papers in many organizations, it's written in at below at the bottom that it is a strictly confidential, public, internal. So why we write that? We are naming that information. We are naming it that it is internal. Like when a baby takes birth, we have to name him. Likewise, when information takes birth, we have to name it. In the organizations, there is that is the policy. When any information is taking birth, we have to name that information. Either strictly it's a confidential, strictly confidential, or public. So it is on the paper we are doing, but when it is on the mails also, companies use some softwares to protect that, and in the mails also it's written. In many of the companies now they are using the softwares to name that information that it is a strictly confidential information. Now, where does cybersecurity come into picture? It is, I have told you that it's an information, and now we are securing the information. Security of an information is called information security. It is a very vast field, but cybersecurity is just a small area where whenever we connect any information to internet, cyber आ गया ना बीच में, cyber means internet. जब internet आ गया और उससे information connect हो गई, तो it is called cyber
cyber, right? So, and when we secure that particular information which is connected to cyber, then cyber security comes into picture. So information security and cyber security, this is the difference. Information security covers all information, whether it is physical information, it's the information on your laptop, pen drive, even in the mind of an employee. That is also an information. So how to protect that information? Protecting the information which is in the brain of any employee, we can protect it using trainings, using NDAs, non-disclosure agreements. We do legal agreements with the employee that you will not divulge any information which is there with you, right? So this is how we protect the information which is there in the mind of any employee, right? So we were talking about cyber security over here, where the information is connected to internet, and how to protect the information which is in the mind of the employee is by training them. So that is why I am here to train you guys, so that you should not divulge any information to any outsider. You know what happens is, the hackers, what they do is, in one of the incident, I'll tell you what happened. Hacker was hacking the entire network of one of the organizations. They were not able to do that. They tried to enter into the entire infrastructure. They entered, but they were not knowing the version number of a particular Windows server. So that was a database server. So what they did is, they called employee IT team member. They said, "Oh, I'm calling from Microsoft. I have a small question. We are going on with a small survey. If you can give me only 10 seconds or 15 seconds, we will give you bounties. We will send you some vouchers and give you a gift of around $5,000. He said, okay, 5-10 minutes, 15 minutes is not a big deal. He said that, okay, my first question, how many Windows servers do you have? He said, I have around 1,000 systems. Okay. Which database servers are you using? He said, this database server. Okay. SQL. Which version? He said, this version. And hacker only wanted the version number of that particular server. And उसका काम हो गया. उसने कहा ठीक है, okay, thank you, bye. And that company got hacked. And this is called social engineering. So in social engineering, they try to take out the information from you with different means. They may call you, they may send you mail, right? So this is how social engineering is done. Okay, so let's start with the session. This is little bit about us. Like, I started this organization in the year 2012. I'm ex-Wipro. After Wipro, I joined Serco as a security head. And after that, in 2012, I started my organization by the name of GIS Consulting. And that was a proprietorship firm. And after that, when I started, my first customer was Panasonic. Then I got Wipro. Then I got Aircel, HCL, Stellar Data Recovery, Punj Lloyd, Apollo Medic Health Insurance, Max Healthcare. When Max Hospitals, they are also our client. So when that came into picture, they said that you should have a private limited organization. Then we created GISPL, G Info Technology Solutions Private Limited. And after that, we got a lot many other clients like CK Birla entire group, Orient Paper, Orient Fans, Orient Electric. Then we got Naukri.com and many more. And in the year 2019, US Air Force, Department of Defense, they sent a challenge in the market that can anybody hack us? So we said, why not? सुपर पावर को हैक करने का मौका मिल रहा है तो छोड़ेगा कौन? So then we said, okay, we will go ahead with that. It was a very tough challenge because almost every security company jumped into it.
and we were one of them. And we still managed to find around 17 weaknesses in their environment. We reported to them, and we were after their life after that. Like, हम उनके पीछे पड़ गए कि we started throwing missiles also. Our mails and our messages that we have done this, please close that. And this took around 6 months for them. And after that, they sent us a thanks letter. Everything got closed. They were happy. And that thanks letter and appreciation letter worked like a catalyst for me. And I opened one organization in US by the name of G Info Technology Solutions, INC. And after that, we opened one organization in Canada, Qatar, Dubai. And in 2021, we got empaneled with Certain. Certain is that is a government organization which handles entire cybersecurity of India. So the Certain empanelment is very, very tough. Like there are only 173 companies in India which are Certain empaneled, and any cybersecurity company who wants to work with government, that should be Certain empaneled. And they don't entertain any other small companies which are not Certain empaneled. So we got Certain empanelment in 2021 22, and after that in the year 2022, Z News, they called me. They took my interview in Leaders Today program was there. They took my interview, and after that, looking at that interview, Times Now TV channel Now Bharat, they also called me. Why not to create one program, TV show on cybersecurity? So they developed one TV show along with me, and you can watch me on TV every Saturday now on Times Now TV channel. So I'm always there to educate. Now we have closed around 50 episodes till now, and now these Discovery Channel, NDTV, they are also calling me for creating the same program. So maybe I'll close Times Now and we'll go with NDTV. And ABP News also, they are approaching me. So after this, we started our own products also. We have developed lot many different products on cybersecurity. And this is the small journey about me. And and we are partners to big four companies also, like PwC, EY. They are all our partners. Like if they get any project, they call us to do their project along with us. So we are into cybersecurity consulting, security implementation maintenance, resource augmentation and training, IoT security and cyber forensic security testings. So this is about me. I have got 2 decades of rich experience in information security, ISO 27001 implementation, IT security auditing, cybersecurity consulting. And I am BTech in computer science, masters in cyber forensics and information security, and doctorate from Socrates Social University. And I am certified CISA, ISO 27001 lead auditor, lead implementer, then PCI DSS implementer, ISO 20000 lead auditor, 22301 implementer, 9001 implementer. Then I am MCSE and a bearer of A+ certification from CompTIA. I was honored with a global award in London in the year 2011. So these are the accolades and awards which we got. We most admired companies in India 2024 by Forbes. So we are in Forbes also, and honored with India International Achievers Award 2024, May 2024, Iconic Brands in India 24 by Outlook Magazine. Then most trusted brand in India by Economic Times, received appreciation for helping US Air Force, I told you, educating the industry on cybersecurity challenges every week on Times Now TV channel, featured by ANI on almost every newspaper for reporting flaws on application hosted on Google and Apple Store. So in Google and Apple Store, there were some flaws in some application. Using that application, I can call your family members using your phone number, and they will think that you are calling. So we reported that, and ANI came to know about this, and they flashed it around
across all newspapers. So top 10 most promising cybersecurity companies India by Silicon India Magazine, Consultant of the Year 2021 by Business Connect Magazine, featured in multiple newspapers for launch of world's first AI assistant for cybersecurity consulting. So you can go to our website, gisconsulting.in. Over there, we have a AI which can answer all your questions. After this training also, if you have any question, you can ask from our AI. So that is a robot sitting over there, which will help you. So these are few brands with which we are working. Like we have Religare, Usha, Panasonic, and PwC. Aaj Tak is also our client. Aaj Tak, then Future Generali Health Insurance, Microtech. So this is the agenda. We'll come to know about famous cybersecurity attacks on refineries and power sectors. What is information security? Basic terms, information security threats, security incident and how to report the incident, safe and secure user practices. Okay. So famous cyber attacks on refineries and power sectors. Like if you see Tata Power, they got attacked in 2022 and hackers exploited an outdated web server. A vulnerability Microsoft reported as commonly used in IoT devices and industrial control system. Despite being discontinued, the server was still embedded in Tata's power's infrastructure, resulted in compromise of some sensitive information. So you all of you guys use Windows, right? You must have got message sometimes कि इसमें एक पैच है वो अपडेट कर दो. वो कहता है there's a new patch updated. Even आपके मोबाइल में भी आता है, right? So always update that whenever you get these kind of messages. तो यही गलती टाटा ने की, उन्होंने पैच नहीं किया सर्वर को और वो काफी टाइम से पड़ा हुआ था सिस्टम में जो कि पुराना हो चुका था, आउटडेट हो चुका था. वो फिर भी उन्होंने क्या किया था कि जो विंडोज आउटडेट हो चुकी है, जो खत्म ही हो चुकी है, वो फिर भी उसको यूज कर रहे थे. यू शुड नॉट यूज दोज विंडोज जिसके पैच ही नहीं आ रहे अब. यू शुड ऑलवेज अपग्रेड इट टू न्यू वर्जन. तो इन्होंने नहीं किया, अटैक हो गया, इतना बड़ा करोड़ का नुकसान हो गया. So this is one of the attacks. Oil India Limited, they got attacked in 2022. Sort of a ransomware attack possible initiated through phishing or an infected device compromise Oil India's network at its Assam headquarters. Attackers demanded ransom through cryptocurrency, and that was 196 Bitcoin. So it was a ransomware attack. So ransomware attack happened and they got 57 crore they asked for as a ransom. So Kudamkulam nuclear plant was attacked in 2019. Attack involved malware, which was named D-Track malware, associated with Lazarus Group, a state-sponsored hacking group from North Korea. So they attacked them from North Korea. This malware infected the administrative network, likely through phishing emails targeting employees. That is what I told you, that employee is a human firewall. You are a human firewall. अगर आप ट्रेंड होंगे तो जितने मर्जी लूज सिस्टम्स हों, लाइक यू कैन फाइट अगेंस्ट देम. अगर जितने मर्जी फैंसी सिस्टम्स लगा लो, अगर एम्प्लॉयज ही ट्रेंड नहीं है तो वो फैंसी सिस्टम किसी काम नहीं आएंगे. तो यहाँ पर यही हुआ कि फिशिंग अटैक हुआ, एक मेल आई, यू मस्ट हैव सीन द मैसेज कि आजकल आता है कि हाँ you can take your income tax return refund, income tax you have filed an income tax, there is a refund, please go on this website and click on this link and take your refund. So that is a phishing attack that is sent by hackers so that they will directly take you to the website of the bank and they will ask you which bank you have. You will select ICICI bank, they will take you to the ICICI bank, you put your username password, हो गया काम. So this is what phishing, this is what is called phishing attack, right?
So here, the malware infected the administrative network, likely through phishing emails targeting employees. Though plant's critical operations network remained unaffected at the attack, was successfully isolated. So, however, this incident exposed cybersecurity weaknesses and prompted concerns about infrastructure security. So, they attacked them, and the entire network was infected. So, this why this has happened, because of phishing. Now we'll talk what were the common technique in those breaches. So, first one, the phishing and spear phishing. Phishing, I told you what is phishing, right? Phishing means employees are phished by hackers. They send messages, mails, or they may call you. So that is called phishing, to take the information from you, right? एक अटैक हुआ था जिसमें कि what happened, hackers were not able to take any data out. Now they wanted some data and from the organization and wanted to hack them, पर वो hack नहीं कर पा रहे थे. What they did is उन्होंने छोटी छोटी पेन ड्राइव्स ली, पेन ड्राइव में अपना वो वायरस डाला जिससे कि उनको अटैक करना था, उनका कंट्रोल लेना था. छोटी छोटी पेन ड्राइव को लेके दे गॉन इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, किसी का नाम लेके अंदर चले गए एंड दे थ्रू द पेन ड्राइव छोटी छोटी लेके अलग अलग जगह पे फेंक दी. अब एम्प्लॉइज ने देखा, अच्छा पेन ड्राइव, जिसने देखा उठा ली, अलग अलग जगह पे पड़ी है, उठा ली, जेब में डाल. अब वो फिर जो है पेन ड्राइव जाके सबने सीधा अपने लैपटॉप पे लगाई क्योंकि वो तो यही करेंगे कि चल रही है नहीं चल रही, देखें फ्री की पेन ड्राइव है. तो सबने चेक किया, जब वो जिसने लगाई, अब जहां पर सबसे लूज कंट्रोल था लैपटॉप के ऊपर, वहां पर वो जो है जाके अटैक एग्जीक्यूट हो गया. इसलिए जो इंटरनल आईटी सिस्टम्स पे समझ लो एंटीवायरस डला हुआ है और पूरा हार्डन है आपका नेटवर्क, इट वाज टोटली हार्डन, बट कहीं पर भी एक छोटी सी भी लैपटॉप में या किसी आपके सिस्टम में जहां पर कमी मिली उसको, उसने वहीं पे अटैक कर दिया. तो व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ अ चेन? एक चेन है, आप जितनी मर्जी मोटी बना लो, उसकी स्ट्रेंथ क्या है पूरी चेन की? The strength is only a weakest link. जो उसका weakest link है ना, बस उतनी strength है उसकी, चाहे जितनी मर्जी मोटी बना लो, but उसके जो links हैं, सारे link strong होने चाहिए, right? So इसी तरह से जहां हैकर को लगेगा कि ये कमजोर है लिंक, वहीं पे वो अटैक कर देगा. तो वो कंपनी गॉट अटैक्ड बाय दैट पेन ड्राइव विच दे थ्रू इन द ऑर्गेनाइजेशन, और उनको पूरा कंट्रोल मिल गया उसका, right? So phishing and spear phishing, then exploiting updated software, outdated software, जो मैंने अभी बताया कि आउटडेट नहीं किया था, उन्होंने अपडेट नहीं किया था अपना विंडोज या जो भी सॉफ्टवेयर था, it was not updated, that is why they got attacked. Then advanced persistent attack, APT. So there are mostly state sponsored these attacks after gaining the authorized access to the computer network remains undetected. There are some attacks, what happens is आपके सिस्टम में वायरस चला जाएगा और वो चुपचाप बैठा रहेगा 1 साल 2 साल या 3 साल, जब और किसी को पता भी नहीं लगेगा, वो बस आपकी इंफॉर्मेशन चुपचाप एज अ स्पाई लेता रहेगा, राइट? So those kind of attacks were used in all these 3 attacks which I have just mentioned. So what is an asset? Now we will talk about setting the concerned information, its security and data privacy. So what is the difference between security and data privacy? Security and privacy. Can anybody tell me? कहाँ है mic किसी को? Security and data privacy, can you let me know? Anybody? What is privacy and security? No? You can tell, right?
Yeah, please. So information security is about what are the protocols that you have to protect the information Mhm. from being accessed unauthorizedly. So any information security, which is any information which is there, should have only an authorized access. And where privacy is concerned, this is mostly related to the information which are personal to an individual. Correct. So where your credentials, PAN numbers, and all these things, these are all come under privacy. Privacy, right. Correct, correct. Very true. Great. Give him a big hand. So anything which what is an asset? Anything which holds value to an organization is an asset. Information is an asset that is vital to organization success. Right? Asset, right? Everything is asset. Like this computer is asset. Everything is asset, right? And anything which holds value to an organization is an asset. Correct? Likewise, information is also an asset. It holds a value, right? So information security is a protection of all information assets such as company data, system, database, network, software, hardware, and facilities from damage from unauthorized access, which aims to access, in simple words, like information security is just I told you that there is an information, we are securing that information. The information is as an asset, and whatever controls we are putting to safeguard that information, it is called information security, right? So privacy is a subset of information security that deals with the handling, storage, and protection of personally identifiable information or a personal data. So what is privacy? In privacy, as he rightly said, that information which is pertaining to you, your personal name, your email ID, right? Over here it's written, see, personal data elements, name, address, phone numbers, email IDs, company name, age, these are our personal elements. Now, sensitive personal elements are financial data, your health data, your official identifiers like PAN card, Aadhaar card, sexual orientation, biometric data, right? Then genetic data, transgender status, castle or tribe, then religious or political belief or affiliation. These are personal to you. So you must have heard about DPDP Act, which is coming up in India. वो पूरा आपकी पर्सनल डिजिटल पर्सनल इंफॉर्मेशन के ऊपर है. जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन डिजिटली है आपकी, उसके ऊपर वो एक्ट अभी आ रहा है, राइट? जो कि डीपीडीपी एक्ट जिसे हम कह रहे हैं. तो जब वो आ जाएगा तो आपका जो पर्सनल डेटा है उसके ऊपर आपका खुद का अधिकार होगा और नोबडी कैन यूज. जो आपको कॉल्स आती हैं आजकल, राइट, टेलीकॉलर्स वगैरह से, वो आनी बंद हो जाएंगी, क्योंकि फिर आप उन पे केस कर सकोगे. आपके ऊपर पूरा हक होगा आपका कि हाँ ये व्हाई आर यू कॉलिंग अस. मेरे मतलब मैं तो you cannot call me like this, you cannot send me mail like this, from where have you got this data? तो DPDP Act इसी के लिए आ रहा है, right? So now key pillars of and objective of information security. The right information is integrity. There are three pillars: confidentiality, integrity, and availability. Confidentiality means in this sentence you will see everything. The right information means integrity to the right people. It should not go to anyone else. It should go to the right people only. That is confidentiality, right? And at the right time is availability. Now, let's say finance guy, he puts one more zero to your salary. You will he will end up giving you 10 times of salary. So that is a correctness of data, right information.
So if information is not right, that means your information is not secure. And when hacker hacks you, that he plays with the information and he will take your information, or he will delete your information, he will modify your information. So right information should be there to a right people. Like access should be given to the right person who is authorized to get that particular access, and at the right time, right? So asset, I already told you what is asset. Then what is vulnerability? Vulnerability is weakness. Then what is threat? Anything that can exploit that vulnerability. अब आप समझ लो कि आपके सर्वर रूम है, सर्वर रूम में एक सर्वर पड़ा हुआ है, एक वायर जा रही है जो कि बिल्कुल बीच में से जा रही है, राइट? और अगर वो कोई आता है चल के तो उस पे पैर मार के जा सकता है, राइट? पैर मार के जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा? हाँ? और सर्वर भी डाउन हो सकता है, राइट? तो क्या है वो जो ये तार है, ये वनरेबिलिटी है। और थ्रेट क्या है उस पे? ये जो मैं गया यहाँ, समझ लो चूहा आ गया और उसने केबल चू कर ली, लाइक ए च्युइंगम तो वो चूहे ने जो च्युइंगम बना के तो चू कर लिया, चूहा इज अ थ्रेट, दैट माउस इज अ थ्रेट, राइट? वनरेबिलिटी ये है कि हाँ, वीकनेस क्या है कि आपने केबल बीच में से लगा रखी है, जबकि नीचे से जानी चाहिए थी, आपने बीच में लगा रखी है और चूहा उसको काट रहा है, चूहा इज थ्रेट टू इट। और रिस्क क्या है? जो उससे डाउन होने के बाद आपको जो नुकसान होगा, राइट, वो रिस्क है, राइट? तो एसेट, वनरेबिलिटी, थ्रेट। एसेट हो गया आपका सर्वर, एसेट हो गया। वनरेबिलिटी हो गई, क्या थी वनरेबिलिटी? हाँ, वायर जो बीच में जा रही थी, है ना? और थ्रेट क्या था? राइट? अब जो, क्योंकि वनरेबिलिटी को हमेशा थ्रेट एक्सप्लॉइट करता है तो रिस्क आता है, राइट? तो वनरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किसने किया? चूहे ने, राइट? अब उसकी वजह से हमें रिस्क मिला। तो ये these terminologies are very much required when you talk about information security. Now I will test your knowledge. जिसने ध्यान से सुना है, अब उनकी नॉलेज टेस्ट होने वाली है। CIA stands for, you will get certificate. Who will answer this? Na? You will get certificate, and you please give your name to IT team. Yes, she wants to answer. Huh? A. Okay. Anybody else? A. B. किसने बोला B? अच्छा। और आप बताइए। B, गुड। अब A, इसका फर्स्ट का आंसर B है। अच्छा, मैंने गुड बोल दिया, सबने B बोल दिया लोगों ने। ओके, सो फर्स्ट का आंसर A ही है। अपने अपने नाम दे देना आईटी टीम को, यू विल रियली गेट द सर्टिफिकेट from our organization. Dash is any that can allow dash to materialize risk leading to yes, anybody else? C.
C. Okay. And anybody about A or C, D, C, D, B, only C? Huh? Yeah. C? Yes. Wow. Great. So answer is C. Great. So identify the threat. In this example, we have installed antivirus on an individual system to prevent the attack of the virus. मतलब एक we have installed antivirus on एक individual system पे antivirus डाल दिया to prevent attack of the virus. Wow. Great. तो ध्यान से सुन रहे हैं लोग. So answer is B. सिस्टम हुआ. Okay, great. तो अब आगे ध्यान से सुनना ताकि अगला टेस्ट आने वाला है. Yes. B. So snapshot of common information security threats. Yeah. So first is social engineering, phishing, social media, then physical security. Now what is social engineering? Phishing. Social engineering is a deception technique used to manipulate people into performing actions or divulging confidential information to gain information. मैंने आपको सबसे पहला एग्जांपल बताया था. वो कॉल आईटी टीम मेंबर को कॉल आई कि आपके यहाँ कितने मींस आई एम कॉलिंग फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट. तो वो क्या बना, माइक्रोसॉफ्ट का बंदा बन गया, अपने आप को चेंज कर लिया अपना वो रूप, और उसको किसी तरह से अटेम्प्ट किया उसने कि मैं तुम्हें अवार्ड दूंगा $500 या $1000, आप बस 10 सेकंड निकाल लो. ज्यादा टाइम लोग देते नहीं, 10 सेकंड 15 सेकंड बहुत था, हो गया था 15 सेकंड में $100,000 मिल रहे हैं, क्या चाहिए. तो दैट इज फिशिंग, दैट इज ए सोशल इंजीनियरिंग एक्चुअली. तो सोशल इंजीनियरिंग में यही करता है हैकर, वो कोशिश करता है कि किसी तरह से उससे निकाल लिया जाए डेटा, राइट. दिस इज अब इसको पढ़ोगे तो समझ आएगा. सोशल इंजीनियरिंग इज अ डिसेप्शन टेक्निक यूज्ड टू मैनिपुलेट पीपल इनटू परफॉर्मिंग एक्शंस or divulging confidential information to gain information, commit fraud or access computer systems, right. So this is called social engineering. Example I have given you lot many. In-person social engineering, then phone social engineering, digital social engineering. So there are lot many different type of social engineering. In-person social engineering, like a person who is personally contacting you, right. And false social engineering, wherein a person calls you and like the person that who called the other person. Social engineering is done through phone, right. And which is called phishing also. Phishing means voice phishing, right. Then digital social engineering, wherein it is done through social media phishing, or it is done through emails. So this is done through a digital social, where a digital medium is used, right. That is called digital. Now we'll talk about email phishing. There are different type of phishings. First is email phishing. email आपको आती है और लिखा होता है आपको अवार्ड मिलेगा, आप लॉटरी मिल जाएगी, आप इस पे क्लिक करो, आप अमेजोन का वाउचर आ रहा है आपके पास, 50% डिस्काउंट है आज, क्लिक करो, दिवाली सेल. वो ये आपको अगर मेल से आ रहा है तो दैट इज ईमेल फिशिंग. यही चीज आपको अगर उससे आ रही है एसएमएस से, तो दैट इज कॉल्ड स्मिशिंग. एसएमएस फिशिंग स्मिशिंग हो गया, राइट. फिर यही चीज आपको कॉल करके कोई बोल रहा है कि हाँ आपका लॉटरी निकली है, आपको ये
मीन्स आप अपना क्रेडिट कार्ड नंबर दे दो ये वो, तो दैट इज वॉइस फिशिंग। तो उसको इसीलिए उसको विशिंग कहते हैं। ईमेल फिशिंग, स्मिशिंग, वॉइस फिशिंग इज विशिंग, राइट? सिंपल। अब हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, आपको क्या देखना है? You have to look at sender name and domain spoof known brand, right? Whenever you get a mail, सबसे पहले ये देखो कि कहाँ से आया, what to look in an email. It's written easy pay support, sender name and domain spoof, it's a known brand से आपको आएगा और आपको लगेगा सच में ये email जो है Amazon से ही आई है, वहाँ पर Amazon लिखा होगा। But और दूसरा क्या होगा, कंप्रेस्ड अटैचमेंट्स होंगी, उसमें जिप फाइल अटैच होगी। मतलब जिप फाइल में क्या होता है कि वायरस को अगर आप EXE को जिप करके भेज दो तो वो चली जाती है, नहीं तो मेल में EXE अटैच नहीं होती, तो जिप करके वायरस को या कुछ कोड को ऐसा जिप करके भेज देते हैं। तो जिप जहां आपको दिख जाए कि जिप फाइल है, वहां आप समझ लो कि कुछ गड़बड़ है, अटैक होने वाला है। और वो भी जिप फाइल क्यों भेजेंगे आपको, अमेज़न वाले जिप फाइल क्यों भेजेंगे भाई? तो देन इम्पर्सनलाइज मैसेज, नोटिस टू अपीयर, वो पर्सनलाइज नहीं होगा, आपको नहीं होगा हेलो नवीन ऐसे नहीं लिखा होगा, हाय, क्योंकि वो जानता नहीं है ना, वो क्या करते हैं एक टूल में डालते हैं और एक ही बार में लाखों लोगों को ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। अब सब पे तो सबका नाम लिख नहीं सकते और उनको मेल्स जो मिलती हैं उनमें उनको पता ही नहीं होता किस किस की है और हर किसी में नाम लिख नहीं सकते वो, तो दैट्स व्हाई इट इज इम्पर्सनलाइज। यू हैव टू सी कि वो सैल्यूटेशन क्या है, आपको आपके नाम से वो दे रहे हैं मेल, नहीं दे रहे, तो हाय लिख दिया बस उसने, हेलो क्लाइंट, हेलो लाइक दिस, नाम नहीं होगा आपको उसमें। ग्रामेटिकल एरर्स विल बी देयर। ये ग्रामेटिकल एरर क्यों डालते हैं ये? हालांकि कई हैकर्स तो बड़े इंटेलिजेंट भी होते हैं, बड़े पढ़े लिखे भी होते हैं, फिर भी ग्रामेटिकल एरर डालते हैं, क्योंकि उनको फिल्टर करना होता है कि इनमें से कौन से लोग हैं जो कि बहुत जल्दी में, जो जल्दी में होगा वही अटैक में आएगा, है ना? वो ध्यान से पढ़ेगा ही नहीं, अच्छा मेन चीज पढ़ेगा, ओ इनवॉइस आई है, ओ जल्दी, मतलब वो ध्यान नहीं देगा, क्योंकि वो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, हैकर्स पागल नहीं है वो ऐसे लोगों को ही फिल्टर करना चाहते हैं जो तो ध्यान ना दें या जो सच में ज्यादा पढ़े लिखे ना हो, फिल्टर हो गए ना वो, ये ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ये जल्दी में था, ज्यादा हालांकि पढ़ा लिखा है पर फिर भी जल्दी जल्दी में उसने कर दिया, जल्दी में था, तो ऐसे ही लोग चाहिए उनको जो जल्दी में रहे, जो ज्यादा पढ़े लिखे ना हो, ऐसे लोग चाहिए जो कि ध्यान से मेल ना पढ़ते हो, है ना? तो ये फिल्टर करना है उनको, इसीलिए ये ग्रामेटिकल मिस्टेक जानबूझ के करते हैं वो फिल्ट्रेशन के लिए। ये फिल्टर है इनका, एक्सेल के अंदर फिल्टर होता है ना, वैसे ही फिल्टर कर लेते हैं। अच्छा ये लोग पकड़े जाएंगे अब। यू हैव नॉट पेड फॉर ड्राइविंग ऑन अ टॉल रोड एंड द फी इज पास ड्यू, द कॉपी ऑफ इनवॉइस इज अटैच्ड टू दिस ईमेल। वो उसका चलान हो गया, स्पीड में चल रहा था, उसका चलान हो गया, आपने पे नहीं किया, अब आप पे करो, वो बोल रहा है वो, जबकि उसमें हमें क्या ध्यान से देना है, जो ग्रामेटिकल एरर है, P is past due, scare tactics, he is using scare tactics and imitating as a known brand, easy pass agent, this is easy pass agent US में यूज होता है, वो easy pass के थ्रू वो जो है आपके जितने चलान्स वगैरह हैं वो पे होते हैं, तो वो ऐसे बन के आया, आपने क्लिक किया, आपको बैंक पे ले गया, वो बैंक में जैसे ही पासवर्ड डाला, हैकर के पास पासवर्ड आ गया, तो हो गया काम। तो दिस इज वन ऑफ द फिशिंग अटैक एग्जांपल्स। और आपको क्या ध्यान देना है, सुन लिया ना सबने? राइट? हाईली पर्सनलाइज्ड मैसेजेस, इन दिस अगर वो पर्सनलाइज भी है तो इट इज कमिंग, इट हैज सेंट टू जे स्मिथ एट बिग बैंग, अनलाइक मास फिशिंग ईमेल्स, दिस इज कॉल्ड स्पीयर फिशिंग। अब स्पीयर फिशिंग में क्या होता है, वो आपके नाम से आपको मैसेज भेजेगा। अब आप कहोगे यार पहले में मतलब इसमें नाम लिखा है, मतलब ये तो फिशिंग नहीं हो सकती, मैंने पहले वाले में कहा था नाम नहीं, वो हाय भेज देगा या कुछ, पर यहाँ पर आपका नाम भी आएगा, इसको कहते हैं स्पीयर फिशिंग।
ये वाले लोग भी हैं मार्केट में जो आपके नाम से आपको करेंगे, बट उस पे आपको क्या देखना है, अनलाइक मास फिशिंग ईमेल, स्पीयर फिशिंग मैसेजेस आर हाईली पर्सनलाइज्ड एंड विल ऑफन रेफरेंस कोवर्कर्स और फ्रेंड नेम्स। नाउ इसमें क्या आ रहा है, वी वर कॉन्ट्रैक्टेड बाय योर HR डायरेक्टर, HR डायरेक्टर का नाम उसने लिख दिया, फिर एम्बेडेड मैलिशियस फाइल। अब उसमें क्या होगा कि कुछ ऐसी फाइल, उसमें मैलिशियस फाइल एम्बेड की हुई है जिसमें कि कॉमन फाइल नेम्स आर डॉग, XLS, PPT कैन कंटेन मैलिशियस मैक्रोस। उसमें क्या होगा, कहीं ना कहीं आपको मैलिशियस फाइल्स मिलेगी, और वो ग्रामेटिकल मिस्टेक तो करेगा ही, क्योंकि वो देखना वो यही फिल्टराइजेशन करते हैं कि हाँ कौन इंसान जो है जल्दी में है, राइट। और आपको जैसे दिखा रहा है एनेबल कंटेंट सिक्योरिटी वार्निंग, अगर आपके इसमें एंटीवायरस है या कोई आप मेल जैसे जीमेल में भी आप देखोगे तो वो अपने आप ही जंक में डाल देता है, राइट। तो जंक में अपने आप ही ऐसी ईमेल्स को डालता है, और अगर नहीं डाला तो ऐसी सिक्योरिटी वार्निंग्स आपके आउटलुक में भी आती हैं। अगर आपके यहाँ एंटीवायरस सिस्टम चल रहा है तो वो अपने आप ही दिखाएगा आपको कि ये ऐसे है। और जहां से वो आएगी ना मेल, अगर आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो अपने आप पता लग जाएगा वो अमेजोन से नहीं है, दिखेगा ऐसे ही कि उसमें लिखा होगा फ्रॉम अमेजोन सपोर्ट। व्हेन यू पुट योर माउस, अपने माउस का कर्सर जैसे ही उस पर लाओगे तो अपने आप दिखा देगा amazon@axyz.com ऐसे करके उसमें आएगा। तो आपको ईमेल, इस केस में आपको ईमेल पे ध्यान देना है, कौन सी ईमेल से आ रही है, उसमें भी ध्यान देना है, इसमें भी देना है कि ईमेल आ कहां से रही है, वो एक्चुअल में एग्जैक्ट ईमेल आईडी से नहीं आ रही होगी। तो नाउ spoofed links, spoofed link text can hide hyperlinks actual destinations, right? मैंने आपको बताया ना, spoofed link होता है, आप माउस डालोगे, माउस क्लिक करोगे तो उसके ऊपर एक्चुअल आपको लिंक पता लग जाएगा। देन spoofed website, now if you see over here क्या लिखा हुआ है, can anybody read this? बैंक ऑफ राइट, बैंक ऑफ एम को उसने क्या किया है, डबल एन डाल दिया ताकि वो एम की तरह लगे, पर वो है नहीं। ICICI वो आई एक आई एक्स्ट्रा लगा देंगे तो आपको लगेगा ICICI, लास्ट वाला आई आप इग्नोर कर सकते हो, पर आपको ध्यान से पढ़ना है। बैंक ऑफ अमेरिका लिखा है तो एम की जगह डबल एन डाल दिया उसने। और ये आप देखोगे, अगर यहाँ पे उसने जैसे क्लिक किया बैंक ऑफ अमेरिका, अमेरिका आ गया नीचे, राइट। तो वैसे आपको लगेगा जैसे बैंक ऑफ अमेरिका से नाम बैंक ऑफ अमेरिका लिखा होगा, बट उस पर जब माउस डालोगे कर्सर तो वो आपको साफ दिख जाएगा कि अमेरिका है या अमेरिका है, राइट। तो ये चीज बहुत ध्यान देनी है आपने। अब सोशल मीडिया फिशिंग, over here if you see, social media is emerging a very potential platform for sharing ideas and knowledge across the globe, also adding to a brand presence in global market. Don't post any company related sensitive information on your social media. कंपनी से रिलेटेड कुछ भी आप सोशल मीडिया पे मत डालो, और कुछ इवन अपने से भी सेंसिटिव है कुछ तो उसको भी मत डालो, राइट। सोशल मीडिया, डोंट यूज एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म for office related discussions, right? So over here if you see, cyber criminals use social media as a channel to carry out phishing attacks aimed at stealing personal information or spreading malware. Some attacks are even used to hijack your account to launch follow-up attacks on your connections or followers. तो कई बार क्या होता है कि आपको अटैक किया तो आपके फॉलोअर्स को भी अटैक कर देगा। आपका सोशल मीडिया हैक हो गया तो वो सारे आपके फॉलोअर्स के पास आपके थ्रू मैसेज भेजेगा कि हाय दिस इज नवीन, हाय हाउ आर यू, मतलब वहीं से उसकी पूरी जो है ट्रेल शुरू हो जाएगी, राइट। सो इफ यू सी ओवर हियर इट्स रिटन
डिसाइडेड टू मेक अ न्यू अकाउंट, उसने कहा कि मैंने डिसाइड किया, मैं मेरे मेल से मेरे ही सोशल मीडिया पे आया कि आई हैव डिसाइडेड टू मेक अ न्यू अकाउंट, प्लीज रजिस्टर। पहले वाले में रे थॉमस में लिखा हुआ है, आपने देखा होगा, रजिस्टर नाउ फॉर फ्री मेंबरशिप, राइट? हे चेक दिस आउट, आई कांट बिलीव दे गॉट द पिक्चर ऑफ योर पिक्चर ऑफ यू। ऐसे आपको मैसेज आएगी कि आपकी पिक्चर किसी ने ली है, जरा क्लिक करके देखो। तो ऐसे कुछ मैसेज आए तो don't click on those kind of messages. Secure user practices now. हाँ, this is a practical. अगर आपको अपनी ईमेल में देखना है कितनी बार हैक हुई है आपकी ईमेल, ये वाली वेबसाइट आप इस पे जरूर जाओ, यू कैन नोट दैट डाउन अपने पास, लाइक हैव आई बीन pwned.com। इवन किसी के पास अगर मोबाइल है उस पे ये टाइप करके अपनी ईमेल आईडी चेक भी कर सकते हो। जैसे इसको आप इस पे जाके देखिए, किसी का चल रहा है इंटरनेट? यहाँ चलता है ना इंटरनेट? प्रैक्टिकल करा के दिखाते हैं। नहीं, यही है, स्पेलिंग यही है, बिल्कुल सही है। PWNED आपने डाला, खोला एक बार, खोलो जरा। नीचे आगे बात करते हैं जरा। हाँ, खोला आपने? हैं? खोलो खोलो, हैव आई बीन पॉन्ड, खोला? हाँ, अब अपना ईमेल आईडी उसमें जीमेल आईडी अपना डाल दो, या जो भी आईडी है वो आपको बता देगा आपका ये हैक्ड है कि नहीं। तो इमीडिएटली आप पासवर्ड आज चेंज कर लेना अपना, अगर आ जाएगा, हैकिंग में आ गया तो। डाला आपने? ये आ गया ना? अब पॉन्ड में लिखा, आपका पॉन्ड है। ओ नो, पॉन्ड 6 data breaches and found no paste, right? It is pond. So इसका मतलब आपका जो है 6 data breaches में आ चुकी है ये मेल। तो आज आप अपना पासवर्ड चेंज कर लेना। आप दिखाओ। ये बोला नहीं, हैव आई बीन पॉन्ड पूरा लिखो ना आप, वो लिखा ना, दिखता है। अच्छा, HAVE हैव आई बीन पॉन्ड। हाँ हाँ, ये अब इसमें अपना ईमेल आईडी डालो। और किसी ने किया चेक? हैं? हाँ, अरे ग्रेट। एक मिनट, नहीं 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 नहीं, ओ नो, ओ सॉरी, मुझे नो डेटा ब्रीचेस का आपने। हाँ, पॉन्ड इन 4 डेटा ब्रीचेस एंड फाउंड नो पेज। सो 4 डेटा ब्रीचेस में आ चुका है ये। चेंज कर लीजिए आप अपना पासवर्ड। और किसी का? हाँ, बिल्कुल सही है, वाह। अब फाउंड पे क्लिक करो। गुड न्यूज है, ईमेल आईडी सही डाली है। ये ऐड नहीं डाला, हैश डाल दिया आपने, ऐड डालो ना, ऐसा कैसे हो सकता है? आपकी आई एक डेटा ब्रीच में आपका आ चुका है, तो आप चेंज कर लेना अपना पासवर्ड। आप, वाह। 2 डेटा ब्रीचेस में आ चुका है आपका। तो मीन्स क्या हुआ होगा, चाहे चाहे आपका ईमेल आईडी हैक नहीं हुई, आपका पासवर्ड किसी, समझ लो वेबसाइट है अमेजोन में अपना अपना जीमेल आईडी दिया आपने। अब जीमेल जब दिया, वो अमेजोन हैक हुआ एक दिन, उसका डेटाबेस हैक हुआ, उसमें आपकी ईमेल आईडी भी थी और उसमें आपका पासवर्ड भी था, तो वो उसके पास चला गया। अब वो हैकर ने यूज करके आपको हैक नहीं किया, वो बात अलग है। डाटा है, डाटा है आपके, आपका पासवर्ड है उसके पास। हाँ था, हाँ, डायरेक्ट नहीं गया होगा, थर्ड पार्टी के थ्रू चला जाता है, मोस्टली चला जाता है। तो आप ये चेक करते रहा करो, एवरी मंथ यू शुड चेक दिस। हाँ जी, पॉन्ड इन एक डेटा ब्रीच में आ गई है आपकी ईमेल, तो ये आप चेंज कर लो।
ये ठीक है @gmail। हाँ वाह मुबारक हो। इनकी नहीं आई, इनकी ईमेल आईडी अभी तक हैक नहीं हुई। आपका भी नहीं आई और किसकी नहीं आई? आपने यहाँ पर किया चेक? किसी ने? आपने किया? 9? वाह परमवीर चक्र मिलना चाहिए आपको तो। और किसी ने? आपने की? 4 ईमेल आईडी है, चारों पर गुड न्यूज। वाह 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 ये तो बहुत बढ़िया है। गुड न्यूज है तो बस फिर ये तो बहुत बढ़िया हो गया। तो ये नागपुर वाला भी चेक किया, नागपुर वाला भी गुड न्यूज है। आपने किया? हैव आई बीन पॉन्ड लिखो आप। है चेक करने के बाद ये कर दिया, ऐसा तो नहीं ऐसा नहीं होता, ये तो बहुत पॉपुलर है। हैव आई बीन पॉन्ड आ गया ना ये। हाँ अब आप इस पे क्लिक करो, यहाँ अपनी ईमेल आईडी डालो। चेक करो आप। आपने किया? आपने किया? गुड न्यूज है। वाह। हाँ तो हो गया है। तो दिस इज अ बेस्ट टूल। एक तरह से हाइजीन चेक करते रहा करो आप, कि पता लग जाए कि आपकी कोई भी ईमेल आईडी है। हाँ करा सकते हैं। पासवर्ड भी चेक करा सकते हैं ना, whether it's been compromised or not. ये आपकी ईमेल हैक हुई है। हाँ हाँ और एक ऑप्शन भी है, हाँ पासवर्ड पासवर्ड भी चेक कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल इसी में है। आपने चेक कर लिया अपना? बहुत पहले check आज भी है, आज भी हैक्ड है। हाँ जी बहुत ऑथेंटिक है ये, वेरी हाई। हाँ सिक्योरिटी इंडस्ट्री यही यूज करता है। अब एक ईमेल हेडर एनालाइजर होता है। अब आप मेरे को कहेंगे कि ईमेल आई किसी से, हमें क्या पता कि ये ईमेल सही है नहीं है जहां से आई है। तो ईमेल के हेडर्स होते हैं जो हम कॉपी करके इस टूल में डाल सकते हैं, ईमेल हेडर एनालाइजर में। जब आप डालोगे तो ये नीचे आपने देखा चेक करने का उसने बताया DKIM ऑथेंटिकेटेड पे रेड आ रहा है, वो क्रॉस आ रहा है ना। जब कोई ईमेल आपके पास आए, आप ये गूगल पे डालना है ईमेल हेडर एनालाइजर, तो वो आपका हेडर एनालाइजर आ जाएगा। उसको आप खोलोगे, उसमें आपको उसका हेडर कॉपी करना पड़ता है। ईमेल का जो हेडर है वो कॉपी करके आप डालोगे तो ये आपको दिखा देगा वो ईमेल सही ऑथेंटिक सोर्स से आई है कि नहीं आई। हाँ गूगल पे आपने ईमेल हेडर एनालाइजर लिखोगे, वो आपके पूरा उसका वो लिंक आ जाएगा। लिंक आएगा, आप उस सॉफ्टवेयर पे जाओगे, उस एप्लीकेशन पे, तो है ऑथेंटिसिटी वेरी हाई। बहुत पूरी इंडस्ट्री यही यूज करती है। पूरी साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री इसी को यूज करती है। हाँ नहीं ईमेल आईडी का वो क्या कर लेगा? आपने पासवर्ड नहीं दिया ना, आपने ईमेल आईडी तो दिया है। हम मिस यूज नहीं करेगा वो है। हाँ वो क्या करता है, उनके पास पूरा ग्लोबल डेटाबेस होता है पूरे। है नहीं पासवर्ड नहीं, पासवर्ड उसने ये नहीं बताया कि पासवर्ड आपका हैक हो। उसने वो ग्लोबल डेटाबेस जब हैक हुआ कहीं पे, उसने वहां जाके देख लिया डार्क वेब पे कि आपकी ईमेल आईडी वहां पड़ी है कि नहीं पड़ी। बस ईमेल आईडी देखी है उसने, ईमेल आईडी हैक्ड डेटाबेस में मिल गई आपकी। उसके बाद तो हैक डेटाबेस है ना, वहां मिली है। ठीक है। सो अगर फेक लिंक आपने देखना है तो वायरस टोटल, गूगल पे वायरस टोटल जाओगे, उसकी वेबसाइट आ जाएगी। उस पे कोई भी आपका लिंक आया, किसी ने लिंक भेजा, क्लिक करने से पहले आप वायरस टोटल पे जाके उसको कॉपी कर दो। जैसे अभी मैंने बताया ना अमेजोन से आया था, आपको लग रहा है यार ये तो सही लग रही है ईमेल, ये सब कुछ तो सही लग रहा है मुझे, पर फिर भी उस लिंक को कॉपी करो और वायरस टोटल की वेबसाइट पे डाल दो। वो अपने आप बता देगा आपको कि ये लिंक सही है कि नहीं। तो ये दिस इज द बेस्ट वे टू चेक कि आपकी जो लिंक है
वो कितना ऑथेंटिक है, राइट? तो वायरस टोटल आप याद रखना। हाँ, सो देर आर ऑनलाइन टूल्स कॉल्ड डीप फेक डिटेक्ट। अच्छा, डीप फेक, व्हाट इज डीप फेक? किसी को पता है डीप फेक क्या है? क्या होता है डीप फेक? है? हाँ हाँ हाँ, किसकी? हाँ, एनीवन, वो ये आपके फैमिली मेंबर की भी हो सकती है। आजकल क्या होता है, वो आपको फोन आता है, वीडियो कॉल आती है, हैकर्स कहते हैं अब नया तरीका यूज करो। वो आपको फोन आएगा, आपको वीडियो कॉल आएगी आपके बेटे की, कि आवाज भी वो वैसी होगी, मिलती जुलती, और वो बोलेगा पापा मैं यहाँ फंस गया हूँ, ये पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा हूँ, जरा मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे पैसे देने हैं, जल्दी मुझे पेटीएम कर दो, मेरा फोन भी उन्होंने रख लिया इसलिए मैं दूसरे फोन से कॉल कर रहा हूँ आपको, तो वो प्लीज आप जो है मुझे हेल्प कर दो, फटाफट इतने पैसे डाल दो इसमें, मेरे को पेटीएम में 10,000 20,000। तो ऐसे करके वो जो है आपको झांसे में ले आते हैं और पैसे ले लेते हैं। तो फोटो वही होगी, आवाज होगी, दिस इज कॉल्ड डीप फेक। अब डीप फेक अभी तक जो है वैसे अगर कोई आपकी इमेज डाली है उसमें, उसको तो आप डीप फेक डिटेक्ट से जाके देख लोगे, पर इमीडिएट फोन आ रहा है आपको, तो कैसे डिटेक्ट करोगे? कैसे करोगे आप? हाँ वाह वाह वाह। ये हुई ना बेस्ट। इग्नोर। है? तो कैसे करोगे आप? आपके बेटे का फोन आ रहा है, वीडियो कॉल आ रही है, कैसे करोगे? है? हाँ, क्या? उसके नंबर पे फोन करेंगे। पैनिक नहीं होना चाहिए। हाँ, तो इमीडिएट क्या करोगे आप इमीडिएट क्या करोगे? हैं? उसके नहीं नहीं। नंबर पे फोन करके उससे कंफर्म करेंगे। हम्म So, guys, हम्म, while we are अच्छा, on the Zoom chat, हाँ हैं, people in ये the भी सही कह रहे हैं वैसे, auditorium हैं? are not able to hear us. And यस, Mr. Prashant, सबसे बेस्ट you तरीका were वही है। actually correct. You ये have भी to set up a आपने पूछ kind लिया, of पर a second level of authentication with your family members, that whenever you are in trouble, you tell me this हाँ, specific तो एक phrase or एक this टर्म specific होती word, or you है, actually try to verify if they are the correct ये people जीरो or not. ट्रस्ट एक So टर्म है, what जीरो you said is ट्रस्ट, actually correct. जो आजकल बहुत पॉपुलर है, ये आप याद रखना, जीरो ट्रस्ट। किसी पे ट्रस्ट ही नहीं करना, चाहे वो आपके बेटे का शक्ल से फोन कर रहा है या जैसे भी कर रहा है। इसका एक सिद्धांत है, नेवर ट्रस्ट ऑलवेज वेरीफाई। ये दो चीजें याद रखना हमेशा, नेवर ट्रस्ट ऑलवेज, नेवर ट्रस्ट, आप नेवर ट्रस्ट ऑलवेज वेरीफाई। तो आपको ट्रस्ट नहीं करना है, वेरीफाई करना है कि ये मेरा बेटा है, ठीक है, लग तो रहा है भाई। ट्रस्ट नहीं करना, फोन काटना, वापस अपने बेटे को अपने फोन से कॉल करो उसके नंबर पे, कि एक्चुअल में वो बंदा कह रहा है मेरा फोन भी गुम गया, मैं इसलिए दूसरे फोन से कर रहा हूँ, पुलिस वालों ने रख लिया है, जो भी कुछ भी कहता रहे, रोता रहे, बिलकता रहे, तो कहा, अच्छा कोई बात नहीं, मैं अभी करता हूँ, देखो 2 मिनट रुक, मैं तेरे को पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ, काट के फिर अपने बेटे को कॉल करो। नेवर ट्रस्ट ऑलवेज वेरीफाई, ये आजकल साइबर सिक्योरिटी की कंपनीज भी यूज कर रही हैं इस सिद्धांत को, वो मैं आगे बताऊंगा कैसे कर रही हैं। तो नेवर ट्रस्ट ऑलवेज वेरीफाई, ये जीरो ट्रस्ट मेथोडोलॉजी बहुत काम आती है। तो अभी डीप फेक में यहाँ आपको मेल आए, नेवर ट्रस्ट ऑलवेज वेरीफाई, एसएमएस आए, नेवर ट्रस्ट ऑलवेज वेरीफाई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्या उनको ये गौतम हॉस्पिटल में है, मैं इसका दोस्त बोल रहा हूँ, उसको भेजिए 50,000। हाँ मेरे को फोन करके इस नंबर पे पूछ रहा है कि कैसे हो, मैं बोला मैं ठीक हूँ, अमेरिका गया था, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, ये करके 50,000 ले लिया। फोन करना था, सुन लिया सबने, सबने सुन लिया ना?
वो invitation दे दिया, उसका वाइफ मना कर रहा है, वेरीफाई करो। हाँ छोड़ो, वो अमेरिका में है, दे देते पैसा। हो, देख लो। और क्या फोन आया था, वीडियो कॉल आई थी? वीडियो कॉल आई थी, किसकी शक्ल थी? मेरा मेरा फोटो लगा दिया था वाह वाह वाह, देख लो। फेसबुक से लेके। डीफेक का कितना बढ़िया एग्जांपल देखो। 50,000 डीफेक की वजह से ले लिया। इवन अच्छा, हाँ हाँ हाँ, तो फिर वो उस कॉल पे दोबारा कॉल किया आपने? हाँ, वो वही जमतारा जम जमतारा में ही होता है ये सब। तो डीप फेक का शिकार बैठे हैं हमारे यहाँ पे एक। तो आपकी वाइफ सही कर रही थी, ट्रस्ट नहीं कर रही थी वो, उन्होंने हाँ, चेक करो। तो उनका तो ऑलवेज ऑलवेज ट्रस्ट हो गया, ऑलवेज ट्रस्ट। नेवर वेरीफाई। तो नेवर ट्रस्ट, ऑलवेज वेरीफाई, राइट? How to secure mobile device using tools such as there are MDMs, mobile device management। अगर आप गूगल पे डालोगे बहुत सारे MDM फ्री ऑफ कॉस्ट भी आते हैं, जो आप अगर डाल देते हो मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट में, उसका उसमें आपका डेटा इनक्रिप्ट भी हो जाता है। और एक जो है एक मोबी गार्ड करके एक आता है, वो आप अगर डाल लोगे अपने सिस्टम में तो लैपटॉप उसमें मोबाइल वो फ्री है, उसमें इवन SMS वगैरह सब सब वेरीफाई करता है, लिंक्स भी वेरीफाई करता है। तो वो काफी अच्छा मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। मोबाइल को कैसे सिक्योर करते हैं मैंने बताया अभी, MDM। मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट। हाँ, सो when using social media tools such as Instagram, Facebook, LinkedIn, and other sites such as job portals like Glassdoor, Fishbowl, Shine, Indeed, etc., we should be very careful about information that we share on these websites, right? तो ध्यान रखना है, जो sensitive information you should not share on social media। इन सब ने बनाया है। सही है। तो फिजिकल सिक्योरिटी में से कोई है यहाँ पे एडमिन फिजिकल सिक्योरिटी टीम में से? नहीं है? अच्छा, फिजिकल सिक्योरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो हम ऑडिट करते हैं ना बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, तो फिजिकल सिक्योरिटी और IT का सबसे लंबा ऑडिट होता है, इन दो का, क्योंकि इतना सब कुछ होता है फिजिकल सिक्योरिटी में। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन पूरी सेफ है बट उसकी फिजिकल सिक्योरिटी वीक है, हैकर अंदर जाके आपका सर्वर ही उठा के ले आएगा, तो उसको हैक करने की जरूरत क्या है? वो इतनी मेहनत क्यों करे? आपके दरवाजे खुले हुए हैं, कोई भी अंदर जा सकता है, गार्ड जो है ज्यादा चेक नहीं कर रहा है, अच्छा ठीक है जाओ, अच्छा आप इनसे मिलने जा रहे हैं, अच्छा ठीक है, वो आप जाइए, मतलब कोई वेरिफिकेशन नहीं। तो फिजिकल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है साइबर सिक्योरिटी में, राइट? तो फिजिकल सिक्योरिटी इज द प्रोटेक्शन ऑफ पीपल, प्रॉपर्टी एंड एसेट्स फ्रॉम फिजिकल डैमेज और लॉस। एक बार एक रियल इंसिडेंट है, उसमें एक इंटरव्यू हुआ एक बंदे का, तो उससे जो इंटरव्यू ले रहा था उसने कहा कि मेरे बॉस ने कहा है कि आपका ज्यादा इंटरव्यू नहीं लेना, पर मेरा एक क्वेश्चन है कि आपको किस लिए चूज किया उसने, मेरे बॉस ने, आप ऐसे ऐसे कैसे, मतलब डायरेक्ट उनकी उससे आ गए, और बस मुझे ये जानना है कि व्हाई शुड आई हायर यू। उसने कहा द रीजन व्हाई आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू इज व्हाई यू शुड हायर मी। मैं आपके सामने बैठा हूं ना,
यही सबसे बड़ा रीजन है। वो कहता है इसका मतलब, कहता है मैं, आपने साइबर सिक्योरिटी हेड मांगा था ना, साइबर सिक्योरिटी का एक्सपर्ट चाहिए था आपको, मैंने आपके बॉस की ईमेल हैक की और उससे आपको ईमेल किया कि ये बंदा है, इसका बिना इंटरव्यू लिए आप इसको हायर कर लेना। तो उसका बिना इंटरव्यू लिए हायर कर लेना, और आपने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा, यही रीजन है कि आप मुझे हायर कर लो। ठीक है। सो ये हुआ, और मींस एक्चुअली दिस इज एन रियल इंसिडेंट। तो उस वजह से उसको हायर भी किया गया, फिर वो उसने सारी साइबर सिक्योरिटी ठीक की उनकी कंपनी की। तो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। और ये चुटकुला भी बन गया है, काफी लोग ये इसको चुटकुले में भी सुनाते हैं कि ऐसा भी हुआ है, राइट। सो टेल गेटिंग क्या होती है? व्हाट इज टेल गेटिंग? किसी को पता है टेल गेटिंग? हाँ हाँ, somebody is accessing, हाँ हाँ। अब ये गए, इनके पीछे पीछे मैंने ऐसे हाथ लगाया और गेट में घुस गया, है ना। गेट खुला हुआ है बड़ी देर तक, वो थोड़ी देर लगती है ना बंद होने में, तो वो एकदम हाथ लगाया और मैं घुस गया। हाँ, गेट खुलता है जितना टाइम है उस टाइम में और भी लोग घुस जाते हैं। हाँ, एक्सेस कार्ड आपके पास है पर पीछे बाकी लोग भी चल दिए, है ना। तो ये दैट इज कॉल्ड टेल गेटिंग। थेफ्ट, क्रिमिनल में स्टील हार्डवेयर, ये तो थेफ्ट तो सिंपल हो गया। आप क्रिमिनल अंदर आया, चोरी कर ली, मैंने बोला ना आपका, आपको वो हैक करने की जरूरत ही नहीं है उसे, अगर वो अंदर आके चुपचाप सर्वर उठा के ले जा रहा है। वो हैक क्यों करेगा आपको? तो थेफ्ट हो गया सीधा। अनअकाउंटेड विजिटर, इफ यू डोंट नो हु इज इन योर वर्क प्लेस एट अ गिवन टाइम, इट्स डिफिकल्ट टू मेंटेन अ हाई लेवल ऑफ फिजिकल सिक्योरिटी। तो आपके यहाँ जैसे आई कार्ड्स वगैरह का, आई थिंक आपके यहाँ वो नहीं है, मीन्स कंपनी में क्या है कि आई कार्ड डाल के रखते हैं सारे, और वैसे भी आप सब एक दूसरे को जानते हो मैक्सिमम, कि कहीं सस्पिशियस एक्टिविटी देखो, कोई लग रहा है कि हाँ ये तो हमारा यहाँ पर एम्प्लॉय नहीं है, तो यू शुड ऑलवेज आस्क कि ये कौन हो आप, आपको किससे मिलना है। सस्पिशियस एक्टिविटी दिखी जाती है, जो भी ऐसे क्रिमिनल एक्ट से आएगा वो आंखों से पता लग ही जाता है, उसकी हरकतों से ही पता लग जाता है। साइबर फिजिकल अटैक्स, a security breach in cyberspace that impacts the physical environment। अब क्या होता है इसमें कि अटैक तो उसने किया पर आपकी फिजिकल एनवायरनमेंट पे अटैक हो गया, जैसे कि आपकी कोई मशीनरी बंद हो गई, या आपका जो है इसमें दिखाया हुआ है वाटर पंप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ही बंद कर दिया उसने। तो अटैक तो किया उसने, और आपका जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसके अंदर जो भी मशीनरीज या कुछ फिजिकल एक्टिविटी है वो बंद कर देता है अटैकर, तो वो साइबर फिजिकल अटैक उसे कहते हैं, राइट। प्रिवेंशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी अटैक्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन। अब जो ऑर्गेनाइजेशन, अब इतने अटैक मैंने बताए हुए हैं, तो उन अटैक्स को रोकने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस को क्या क्या करना चाहिए, ये अभी मैंने शुरू में आपको अटैक्स दिखाए थे काफी सारे, जो कि थर्मल पावर पे हुए, रिफाइनरीज पे हुए। अब वो उनको रोकने के लिए हमें करना क्या चाहिए? हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक एनुअल एक्टिविटी करनी चाहिए, एक हाफ ईयरली करनी चाहिए, एक क्वार्टरली एक्टिविटी करनी चाहिए, राइट। जिसमें कि वनरेबिलिटी असेसमेंट, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, अगर आप देखोगे इसमें लिखा है टू सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ साइबर क्राइसिस वी सजेस्ट यू टू डू वनरेबिलिटी असेसमेंट ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। वनरेबिलिटी असेसमेंट क्या होती है? एथिकल हैकिंग होती है एक तरह से। आप खुद ही अपनी कंपनी को हैक करके करवाओ, हैकर से, एक्सपर्ट से, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट से हैक करके पता लगाओ कि हैकर कहाँ कहाँ से अंदर घुस सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। तो दैट इज कॉल्ड वनरेबिलिटी असेसमेंट, वो करानी चाहिए। इंक्लूडिंग वेब एप्लीकेशन की भी हैकिंग करानी चाहिए, नेटवर्क डिवाइसेस की भी करानी चाहिए। कंडक्ट सिक्योरिटी अवेयरनेस सेशन जैसे हम अभी कर रहे हैं, तो ये
क्वार्टरली एक्टिविटी होनी चाहिए आपकी। टेस्ट एंड अपडेट इंसिडेंट रिस्पॉन्स पॉलिसीज, देयर आर, यहाँ कुछ पॉलिसी प्रोसीजर होते हैं जिसमें कि इंसिडेंट मैनेजमेंट की बात होती है। जैसे ही कोई इंसिडेंट हुआ, कोई अटैक हुआ, उसी वक्त हमें वो इन्फॉर्म करना है, उस पर इमीडिएट एक्शन लेना है, राइट। अगर आपने किसी, जैसे अब मैंने बताया कि कोई अंदर घुस गया, आपने देखा ये बंदा सही नहीं लग रहा, वो भी इंसिडेंट में आता है। आपने उसकी इंफॉर्मेशन एकदम गार्ड को दी या अपनी साइबर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम को दी, तो वो इमीडिएट एक्शन लेंगे। तो ये एक इंसिडेंट हुआ, आपने इमीडिएट उस पर एक्शन लिया, तो इसके पॉलिसीज प्रोसीजर्स बनते हैं। तो वो हमें जो है टेस्ट करने चाहिए, अपडेट करने चाहिए एंड पॉलिसीज कंडक्ट। ACL एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होती है एक, कि किस किस को किस किस चीज का एक्सेस है कंपनी के अंदर, उसका भी हमें ऑडिट करना चाहिए क्वार्टरली। एंड परफॉर्म थ्रेट मॉनिटरिंग, एक थ्रेट मॉनिटरिंग होती है जिसमें कि थ्रेट इंटेलिजेंस भी कहते हैं उसे। मींस हम तो क्या करते हैं, हमें कंपनी का बस एक नाम चाहिए होता है, हम अच्छा नालको है, एक कंपनी ने मुझे कहा कि मुझे ये वनरेबिलिटी असेसमेंट, ये जो एथिकल हैकिंग करानी क्यों चाहिए, बेकार की एक्टिविटी, ऐसी पैसे खर्च होंगे, हम क्यों कराएं। मैं कहा ठीक है, आई विल आंसर योर क्वेश्चन आफ्टर 3 days। 3 दिन बाद मैं आया, तो मैंने वो थ्रेट इंटेलिजेंस हमारे पास पूरी होती है, हम उसमें क्या करते हैं, पूरा देख लेते हैं ये कंपनी कब कब हैक हुई, इसके कितने पासवर्ड हैक हो चुके हैं, और कितना इनका डेटा जा चुका है, सब कुछ हमें पता लग जाता है। हमारे पास ऐसे टूल्स होते हैं जिससे हम पता कर लेते हैं। पर वो अनएथिकल भी नहीं है, क्योंकि आपका डेटा तो पब्लिक पे पड़ा है ना। मैं तो पब्लिक पे तो कुछ भी करता हूँ, आपके अंदर तो घुस नहीं रहा। मैंने पूरा चेक किया, मैंने पूरी रिपोर्ट दे दी है, देख लो। आपका इस तारीख को ये बंदा है, इसका डेटा गया, आपके इतने पासवर्ड हैक हो चुके हैं, इतना ये हो गया, वो हो गया, पूरा रिपोर्ट जब थ्रेट इंटेलिजेंस की दिखाई, तो वो कहता करना क्या है मुझे बता दो। वो आपने जो वनरेबिलिटी असेसमेंट कही थी वो कर लो, या जो भी करना है। अब मैंने कहा कि ये इतनी बड़ी रिपोर्ट है, इसमें तो आपका सोर्स कोड तक चला गया है, तो उसमें सोर्स कोड रिव्यू, बहुत सारी चीजें हमने की। मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ कि थ्रेट इंटेलिजेंस क्या होता है। थ्रेट इंटेलिजेंस से हमें पता लग जाता है कि हैकर ने कहाँ कहाँ आपका डेटा रखा है डार्क वेब में, कि कब कब गया, पूरी डेट्स के साथ हमें पता है। तो दिस एक्टिविटी शुड बी टेकन केयर बाय द ऑर्गेनाइजेशन। Then implementation of information security standards such as ISO 27001 and implementing zero trust security model। जीरो ट्रस्ट का क्या प्रिंसिपल था? वाह सारे इंटेलिजेंट है, गुड। हाफ ईयरली साइकिल में हमें क्या करना चाहिए? रॉबस्ट सिक्योरिटी प्लान शुड इंक्लूड हार्डनिंग रिव्यूज, नेटवर्क डिवाइसेस की कुछ हार्डनिंग होती है वो करानी चाहिए, राउटर्स, फायरवॉल, हर की, टू मॉनिटर एनी न्यू चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि आईटी वाले ज़्यादा जानते होंगे कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, तो आपके लिए नहीं होगा ये ज़्यादा रेलेवेंट, तो ये सब कराना चाहिए। एंड परफॉर्म रिव्यू ऑफ डाटा इंक्रिप्शन, कंडक्ट BCP ड्रिल्स, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग, यू मस्ट बी नोइंग ड्रिल्स, वो करानी चाहिए। सेफ गार्ड ऑपरेशन फ्रॉम बीइंग हैम्पर्ड। एनुअल में हमें एडवांसेस थ्रेट डिटेक्शन परफॉर्म्ड विद रेड टीम असेसमेंट। एक तो एथिकल हैकिंग होती है, एक रेड टीम असेसमेंट होती है। रेड टीम असेसमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम एथिकल हैकिंग। रेड टीम असेसमेंट में हम बिल्कुल हैकर की तरह अटैक करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, और हम जितनी अंदर जा सकते हैं हम जाते हैं, राइट। अंदर हमने फायरवॉल हैक की, उससे हम सर्वर में जा सकते हैं, हम चले जाएंगे, सर्वर से हम सिस्टम पे जा सकते हैं, हम चले जाएंगे। हम इवन यूजर से बात करके भी पासवर्ड निकलवा के हम यूज करके दिखा देते हैं कंपनी को, देखो हमने ये भी कर लिया। वो रेड टीम असेसमेंट होती है, तो ये भी करानी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को। हाँ, अब ये आ गया कैसल एंड मोट सिक्योरिटी। ये आपको दिख रहा है, एक किला खड़ा हुआ है, किले के बाहर आसपास क्या है दिख रहा है आपको? है फायरवॉल से के आगे क्या है? एक ब्लू कलर की लाइन, एक पट्टी चल रही है ना, पानी है। पुराने जमाने में क्या होता था, जो ये किले में राजा लोग क्या करते थे, मगरमच्छ डाल देते थे उसमें पानी की एक वो बनाई,
उसमें मगरमच्छ डाल दिए, तो कैसल इसको मोट कहते हैं, जो जिसमें मगरमच्छ डाल के नदी बना देते हैं, ताकि कोई आए और उसमें पार करने का कोई रास्ता नहीं, कोई ब्रिज नहीं होता, वो लकड़ी का, जब उनको पार करना तो लकड़ी का एक फट्टा डालते थे, पार कर लेते थे। तो वो कैसल एंड द मोट, मतलब मोट वो होगी जिसमें मगरमच्छ है, जब कोई कूदेगा मगरमच्छ खा जाएगा उसे, तैरने की कोशिश करेगा मगरमच्छ खा जाएगा। तो ये आजकल हम ऐसे ही फायरवॉल लगाते हैं कंपनीज में, मतलब उसमें क्या राजा लोग क्या कहते थे कि कोई अंदर तो आ नहीं सकता, है ना, सब कुछ तो बाहर से सिक्योर्ड है, अंदर कोई आएगा नहीं, हम सिक्योर हो गए। पर कोई अगर अंदर ही भेदी बैठा हो, अंदर ही ऐसा बंदे बैठे हो जो और अंदर आपका सब कुछ खुला हुआ है, आपके लॉकर भी खुले हुए हैं, तिजोरियां खुली हुई हैं, क्योंकि आपको डर ही नहीं है, कोई बाहर से आ ही नहीं सकता। और अगर समझ लो कोई आ गया मगरमच्छ से, या अपनी नाव ला के किसी तरह घुस गया अंदर, तो फिर तो अंदर सब कुछ खुला ही हुआ है ना, अंदर तो आपने सिक्योर ही नहीं किया कुछ, है ना। बाहर आपने इतनी सिक्योरिटी लगा दी, फायरवॉल ये वो, पहले, अब कंपनीज अभी भी यही करती हैं, वो क्या कहती है फायरवॉल लगा दो, उसको बाहर से इतना सिक्योर कर दो कोई घुस ना पाए। पर अगर हैकर अंदर आ गया आपके ये सिक्योरिटी सिस्टम को ब्रीच करके, फिजिकल सिक्योरिटी को, मतलब आपके जो गार्ड के पास आया, उसने किस तरह बहाना बना के अंदर चला गया, अंदर जाके अपना लैपटॉप लगा दिया, वाईफाई से कनेक्ट कर दिया, फिर तो सब गया ना, क्योंकि अंदर तो आपको डर ही नहीं है, अंदर सब कुछ खुला रखा हुआ है आपने, क्योंकि आपको लग रहा है कोई कुछ कर नहीं सकता। पर जो अंदर, यहाँ अंदर कोई एम्प्लॉय बैठा हुआ है, वो मिला हुआ है किसी से, वो आपका एक पेन ड्राइव में कोड ले आएगा, वो चला देगा और हैकर को एक्सेस मिल जाएगा। तो ये पहले जो है ये चलती थी मेथोडोलॉजी, जो कि अभी भी कहीं कंपनीज गलती कर रही हैं, वो धीरे धीरे शिफ्ट किस पे हो रही है, जीरो ट्रस्ट, नेवर ट्रस्ट, ऑलवेज वेरीफाई। तो अब क्या कर दिया उन्होंने, अब वो शिफ्ट कर रही हैं जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी अप्रोच पे, जो कि हर चीज में चलती है, हर, जो मैंने अभी बताया आपको, डीप फेक कॉल आ रही है, मेल आ रही है ना। तो वो क्या करती हैं, अगर आपका एम्प्लॉय आ रहा है और सिस्टम को खोल भी रहा है, तो उसको थंब से खोलना पड़ेगा, ठीक है, थंब से खोलेगा या रेटिना से या फेस से, उससे खोलेगा। और वो आपका सिस्टम जो है, जो उसका पासवर्ड है, चेंज होता रहेगा फ्रिक्वेंटली, और आपको जो है अपने आप को ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। मींस अगर हैकर अंदर आ भी गया तो उसको अपने आप को ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, और कुछ भी आपकी मेल्स जा रही हैं, कुछ जा रहा है, वो सब कुछ वेरीफाई होके जाएगा, कुछ भी कर रहा है तो वो वेरीफाई होगा। जीरो ट्रस्ट मींस इंटरनल पर्सन पे भी ट्रस्ट नहीं करना, क्योंकि वो इंटरनल पर्सन कभी हैकर भी हो सकता है, हैकर अंदर आके इंटरनल पर्सन बन जाए, अंदर आके अटैक करने की कोशिश कर रहा है, तो वो उसको भी ट्रस्ट नहीं करेगा ना, किसी को ट्रस्ट नहीं करेगा। तो जीरो ट्रस्ट में वेरीफाई एवरी यूजर, वैलिडेट देयर डिवाइसेस, इंटेलिजेंटली लिमिट देयर एक्सेस, ठीक है। तो पहले तो वेरीफाई करना है हर यूजर को, फिर उनके जो डिवाइस है उनको वैलिडेट करना है कि हाँ ये डिवाइस एक्चुअल में है। समझ लो कोई अपने घर से ही लैपटॉप ले आया, या हैकर अपना लैपटॉप ले आया, उसका डिवाइस वो पहले वैलिडेट करेगा कि ये मेरे ही सिस्टम का डिवाइस है कि नहीं है, मेरे हम, क्योंकि जब जीरो ट्रस्ट में क्या होता है, सारे जो आपके लैपटॉप सिस्टम सर्वर्स, जो भी सिस्टम्स हैं, वो सारे लिस्टेड होते हैं कि हाँ उन सबके एक मैक एड्रेस होते हैं, मैक एड्रेस पहले से ही लिस्टेड रहते हैं। और कोई नया मैक एड्रेस देखते ही, मैक एड्रेस क्या होता है, एक तरह से आपके हर लैपटॉप का, हर सिस्टम का एक फिजिकल एड्रेस होता है, जो कि उसके अंदर हार्ड कोडेड होता है उसके नेटवर्क कार्ड में। तो वो वेरीफाई करता है, और अगर आप उसको नया मैक एड्रेस मिला, वो एकदम रिजेक्ट कर देगा कि ये कोई अटैक करने की कोशिश कर रहा है, ये कोई नया सिस्टम डालने की कोशिश कर रहा है। तो वो हमेशा वैलिडेट, डिवाइस को हमेशा वैलिडेट करेगा, फिर इंटेलिजेंटली लिमिट देयर एक्सेस, फिर उनका इंटेलिजेंटली उनका एक्सेस लिमिट कर देगा कि भैया आपको एक्सेस नहीं है, लिमिट कर दिया, राइट। तो ये जीरो ट्रस्ट में होता है, राइट। हाँ, टेस्ट योर नॉलेज। It is a deception technique to manipulate people into performing actions or divulging confidential information to gain information. अच्छा,
मार्केटिंग तो नहीं है ना? है? अच्छा, नेटवर्किंग भी नहीं है? पक्का बी है? हाँ जी, बी क्या है? बी क्या होती है? सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है? हाँ, सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है? वो कहाँ है? हाँ, अकाउंटिंग सर जो होते हैं सर वो हैकिंग होता है अच्छा, नीचे का कैसे होती है? अच्छा, हो गया। हाँ, आप बताइए। सोशल इंजीनियरिंग जो फेसबुक अकाउंटिंग है, ईमेल ये फेसिंग है वो सर सोशल। हम्म, हाँ, अच्छा, ठीक है, ठीक है। क्या होती है सोशल इंजीनियरिंग? नहीं? आप बताएंगे? पर्सनली फोन करके कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और उसके थ्रू हैकिंग करना हाँ, ठीक है बाय कि फोन और बाय मीटिंग आल्सो इन हाँ। पर्सन मीटिंग और डिजिटल हाँ, एनीथिंग। गुड। तो मीन्स आपको, जैसे मैंने काफी एग्जांपल लिए कि आपको फोन आएगा कि हाँ मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, वो सब दैट इज कॉल्ड सोशल इंजीनियरिंग। ठीक है, आपको इंफॉर्मेशन डाइवर्ज करने के लिए वो कर देगा कि हाँ आपको करनी है, मतलब आपको लगेगा कि हाँ ये सच है, सच बोल रहा है, तो वो सब सोशल इंजीनियरिंग ही है। इवन वो जो डीप फेक कर रहे हैं वो भी सोशल इंजीनियरिंग ही है, राइट? इफ यू रिसीव एन ईमेल विद द डिटेल्स, तो बी इज करेक्ट, सबने बी बी बोला है, ग्रेट। So if you receive an email with details mentioned below, which of the following can be a social engineering attack? Ask you to donate to their charitable fundraiser or some other cause with instructions on how to send the money to criminals. The message contains that there is a problem that requires you to verify information by clicking on the displayed link. Huh? The message notifying you that you are a winner. Email claims. Huh? All. B किसने बोला है? अच्छा, आपने बी बोला है? किसने? बी किसने? आपने बोला है? हैं? बी बोला था किसी ने? क्या सोच हैं? डी? अच्छा, डी। ओके, डी, वेरी गुड। सो पहले का आंसर बी था, दैट इज करेक्ट। दूसरे का डी है। ओके, डैश इज एन ईमेल फ्रॉड मेथड इन विच perpetrator sends out legitimate looking email to gather personal and financial information from recipients. क्या? बी? यस सर। हैं? बी फॉर बॉम्बे। अब से सही है, अब समझ आ रहा है, बी फॉर बॉम्बे, बी है, बी है। ओके, परफेक्ट। बिल्कुल ठीक है, तो आंसर इज बी। तो ऑल आंसर करेक्ट, किसी ने कुछ गलत नहीं बोला। गिव एवरीबॉडी अ बिग हैंड। ताली बजा दो सबके लिए। ओके, हाँ, सिक्योरिटी इंसिडेंट अभी मैंने बताया बिल्कुल। सिक्योरिटी इंसिडेंट क्या होता है? ये सुना था किसी ने? क्या होता है सिक्योरिटी इंसिडेंट? हैं? हैं? हाँ, इंसिडेंट कुछ भी हो सकता है। हाँ, इवन वायरस अटैक भी एक इंसिडेंट है। मैंने आपको बताया था, आपको एक मेलिशियस पर्सन दिखा, ये गलत लग रहा है मेरे को, वो भी एक इंसिडेंट है।
या किसी ने पासवर्ड किसी को बता दिया अपना, वो भी एक इंसिडेंट ही है, वो पॉलिसी ब्रीच है, राइट, कि पासवर्ड नहीं बताना है आपको, है ना। तो वो ऐसे कुछ भी इंसिडेंट होते हैं तो वो दीज आर सिक्योरिटी इंसिडेंट। अब इसमें एग्जांपल दिए हुए हैं जैसे कि सस्पिशियस अनयूजुअल बिहेवियर इंक्लूड बट नॉट ओनली लिमिटेड टू विजिटर वॉकिंग अराउंड अनअटेंडेड विदाउट बैजेस। विजिटर आपका घूम रहा है, कोई एक विजिटर है, उसके बैच ही नहीं है विजिटर का, वो उसने गले में नहीं डाला हुआ है ना, राइट। एनी यूजर विजिटर टेल गेटिंग, कोई भी यूजर या विजिटर टेल गेट कर रहा है, वो भी एक इंसिडेंट है कि टेल गेट क्यों कर रहा है ये, टेल गेट पता है ना सबको। यूजर वर्किंग ऑन सम अदर यूजर सिस्टम, एक यूजर किसी और के सिस्टम पे काम कर रहा है बैठ के, वो क्यों कर रहा है, ये भी एक इंसिडेंट है ना। मिस्टर खन्ना के यूजर पे सिस्टम पे मिस्टर मेहता बैठे हुए हैं वो भी एक है ना। यूजर शेयरिंग इज हर पासवर्ड, ये भी एक इंसिडेंट है। सिस्टम एप्लीकेशन स्लो डाउन, वो भी एक इंसिडेंट ही है कि आपकी एकदम एप्लीकेशन डाउन होगी, सिस्टम स्लो हो गया, तो ये भी आपको रिपोर्ट करना है अपनी आईटी टीम को, राइट। तो एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम होती है जो ये सारे इंसिडेंट लेती है, उसको लॉग करती है, उस पर प्रॉपर एक्शन होता है उस पर, तो उसको इंसिडेंट मैनेजमेंट कहते हैं, राइट। तो फ्रीक्वेंट पॉपअप्स आ रहे हैं आपके, उसमें सिस्टम क्रैश हो रहा है, एकदम पॉपअप आते हैं ना कि ये खरीद लो, मतलब आप किसी वेबसाइट पे गए, कहीं वेबसाइट बहुत ज्यादा पॉपअप देती हैं कि आप कुछ ना कुछ खरीदने के लिए वायरस खरीद लो, आपका सिस्टम में वायरस आ गया, वायरस आ गया, ऐसे पॉपअप्स आते रहते हैं, तो वो भी एक इंसिडेंट है, वो भी आपको रिपोर्ट करना है। व्हाट नीड टू बी डन, बी अलर्ट फॉर सस्पिशियस ईमेल एंड बिहेवियर्स, अलर्ट रहो सस्पिशियस ईमेल एंड बिहेवियर के लिए, रिपोर्ट सिक्योरिटी और प्राइवेसी इंसिडेंट और ब्रीचेस टू योर आईटी टीम और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम। ऐसा कुछ भी होता है तो आपको आईटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम को बताना है कि ये हो रहा है, आप देखो क्यों हो रहा है ये, ठीक है। फेलियर टू रिपोर्ट अ पॉलिसी वायलेशन, failure to report a policy violation shall result in disciplinary action up to and including dismissal। अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया किसी कोई पॉलिसी वायलेशन, ये एक डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो सकता है, राइट। तो ये इंसिडेंट मैनेजमेंट पॉलिसी है अपनी बनी हुई है कुछ, है ना, उसमें सब होगा। तो आईएसएमएस टीम है ना अपनी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम, हाँ ISO 27001 सर्टिफाइड है हम, तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम भी है। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम को हर तरह का इंसिडेंट बताना है, चाहे वो फिजिकल सिक्योरिटी का हो या कुछ भी हो, आपको गार्ड को ना बता के इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम को ही बताना है, वो रिपोर्ट लॉग करेगी, इंसिडेंट लॉग करेगी अपने पास, और उस पर प्रॉपर एक्शन होगा फिर, राइट। तो ये यू हैव टू मेक श्योर कि आप ये कर रहे हैं, राइट। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी मैंने आपको बताया था अभी कि सिक्योरिटी क्या होती है, प्राइवेसी क्या होती है, राइट। सिक्योरिटी और प्राइवेसी क्या होते हैं, प्राइवेसी प्राइवेसी यस, breach of personal information, personally identifiable information। Security primarily focuses on protecting information systems from unauthorized access, attacks, and breaches. Privacy, on the other hand, pertains to the protection of personal information and the individual's right to control the collection, use, and disclosure of the personal data। तो बस वो पर्सनल डेटा पे फोकस्ड है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हर तरह की इंफॉर्मेशन पे फोकस्ड है, राइट। और PII जो होती है वो पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन होती है, जैसे मेल, ईमेल एड्रेस, वो सब हो गया। एनी इंडिविजुअल स्पेसिफिक क्रिटिकल इंफॉर्मेशन क्लब विद PII, एग्जांपल द हिस्ट्री, अकाउंट पासवर्ड, SSN, दैट इज कॉल्ड SPI। देन PHI इज योर हेल्थ रिकॉर्ड, हेल्थ रिकॉर्ड PHI होता है। Security requirements are often driven by industry specific standards, so the इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स होते हैं कुछ, जैसे ISO 27001 आपने किया ही हुआ है यहाँ पे, है ना। ऐसी PCI DSS होता है जो कि पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड होता है, वो अलग जगह स्टैंडर्ड यूज होता है, राइट। हाँ, नाउ सिक्योर यूजर प्रैक्टिसेस, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड सिक्योर ईमेल प्रैक्टिसेस। नाउ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, you have to set complex passwords। complex password क्या होता है,
हाँ, like 8 character or 10 character with complexity like एक small alphabet एक capital होना चाहिए. इतना भी कॉम्प्लेक्स To ensure that all passwords are kept completely confidential, use MFA, multi-factor authentication. अगर आपकी Gmail अगर आप पासवर्ड आज अगर आप चेंज करोगे तो उसमें एक MFA का ऑप्शन भी होता है कि अगर कोई भी आपके Gmail में जाएगा तो आपके पास OTP आएगा एक. तो OTP मतलब मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन से पहले एक और फैक्टर है जिस जब तक वो उसको क्लियर नहीं करेगा तब तक वो अंदर जा नहीं पाएगा मेल पे. तो यू हैव टू यूज मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, राइट? दे रहा हूँ किस बात ये का? तो कहा है कचौरी अंदर आओ अंदर आओ. नहीं, फ्री है वो. आप सब बता क्या हुआ फिर? पैसा का ये रेलवे स्टेशन पे गिर गया था तो उधर गिर गया था. नहीं। रास्ते में आ रहे थे 4 टीचर. नहीं नहीं, फ्री यहाँ है. आके लगा. जीमेल फ्री देती है MFA. आप कोई भी जाएगा, कभी किसी का पैसा कटा क्या? तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना है. डोंट मेक ऑब्वियस चॉइसेस लाइक योर निकनेम. डोंट मेक ऑब्वियस लाइक. हाँ, तो अपना जो है बर्थ नेम, निक नेम यूज नहीं करना. डोंट स्टोर पासवर्ड इन एक्सेल, नोटपैड, शेयर पॉइंट, MS Teams, and don't write your password anywhere. Don't share your password with anyone. Now, secure email practices. Cross check the mail is being sent to a legitimate recipient. जब आप मेल भेज रहे हो उसको क्रॉस चेक करो कि वो लेजिटिमेट रेसिपिएंट के पास जा रही है कि नहीं जा रही. तो अच्छा, ये SSO छूट गया था. सिंगल साइन ऑन होता है. सिंगल साइन ऑन. सिंगल साइन ऑन में क्या होता है? टाइम हो गया. तो सिंगल साइन ऑन में क्या होता है कि एक ही पासवर्ड यूज होता है जो कि सारी आपकी जो एप्लीकेशंस है उसको उसके लिए यूज होता है, राइट? जैसे जीमेल में जीमेल वर्कस्पेस आता है, उसमें जीमेल भी लॉगिन हो जाता है, उसके गूगल ड्राइव भी लॉगिन हो जाती है. तो एक ही पासवर्ड से वो यूज होता है. तो नाउ डिलीट ऑल ईमेल मैसेजेस ऑन अ रेगुलर बेसिस. डिलीट ईमेल मैसेजेस ऑन रेगुलर बेसिस. डिलीट करो, जो बेकार है उसको डिलीट मार दो. डोंट रिप्लाई to email from unknown or suspicious source. Don't share organization's data on personal email ID. Don't send emails with large attachment that can impact the normal traffic flow up to 30 MB. Means वो तो आपने वो लगाया होगा यहाँ पे कि इतने MB से ऊपर जा ही नहीं सकती, है ना? Don't open attachment to tempting offer claiming urgency. Don't access personal email on office laptops. Do not click on any hyperlinks in the email. Use mouse to hover over each link to verify its actual destination. तो जो भी हाइपरलिंक आ रहा है मेल पे उस पे बस माउस का वो रखोगे तो आपको पता लग जाएगा ये अमेजोन है या क्या है. लिखा होगा अमेजोन, क्लिक हेयर अमेजोन कूपन. जब उस पर क्लिक करोगे तो कहीं और क्लिक, बस माउस रखना है, क्लिक नहीं करना. माउस रखते ही आपको एक्चुअल वो दिखा देगा ऊपर कि लिंक एक्चुअल कौन सा है. लैपटॉप में क्या करना है? इंश्योर दैट इनक्रिप्शन इज ऑलवेज रनिंग. इनक्रिप्शन है आपके यहाँ? नहीं, इनक्रिप्शन. तो यूज कंपनी प्रोवाइडेड इशूड डिवाइसेस टू एक्सेस कंपनी एंड कस्टमर इंफॉर्मेशन. अपना पर्सनल लैपटॉप से कुछ एक्सेस मत करो, आप कंपनी प्रोवाइडेड से करो. ऑलवेज लॉक डेस्कटॉप लैपटॉप व्हेन नॉट इन यूज एंड सेट स्क्रीन सेवर टू रिक्वायर पासवर्ड प्रोटेक्शन और रिज्यूम. मीन्स आप जब भी उठ के जा रहे हो तो उसको लॉक करके जाओ अपने सिस्टम को, राइट? और इवन IT की पॉलिसी होती है इसमें कि वो अपने आप जो है कुछ टाइम बाद लॉक हो जाता है आपका लैपटॉप. डू नॉट शेयर योर ऑफिस लैपटॉप विद एनीवन. डू नॉट कनेक्ट योर ऑफिशियल लैपटॉप ऑन एन ओपन पब्लिक वाईफाई. इंटरनेट सिक्योरिटी चेक फॉर सिक्योर वेब कनेक्शन. जब भी वेबसाइट खोलो तो HTTPS लिखा होना चाहिए आगे, ठीक है? तो थोड़ा हमें जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि टाइम खत्म हो गया है. तो HTTPS लिखा होगा तो वो सिक्योर्ड है. HTTP लिखा होगा तो इनसिक्योर है. उसके शुरू में लिखा होगा नॉट सिक्योर.
तो validate the URL if it is legitimate or not. For any suspicious or unusual behavior on your laptop, immediately disconnect it from the network first and contact information security team. Do not use internet to access non-business related sites, social networks, or file transfer. Do not entertain requests from remote control from anyone except IT team. कोई कई बार ऐसे अटैक भी हुए हैं, वो कहते हैं कि मैं आईटी से बोल रहा हूँ, आपका सिस्टम, हम ना सारे सिस्टम फास्ट कर रहे हैं कंपनी के, आप जरा एक्सेस देना, आपका सिस्टम 5 गुना फास्ट हो जाएगा, ऐसे कुछ कह के वो हैकर एक्सेस ले लेते हैं। तो वो उसको सीधा मना कर दो कि नहीं, मैं आईटी को वापस कॉल करता हूँ, आप फोन रख दो, ठीक है। सो नेवर क्लिक ऑन पॉपअप्स, डू नॉट अपलोड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑन एनी पब्लिक प्लेटफॉर्म. Other security practices: always wear your ID card in office premises. When you enter or leave the premises, do not tailgate and do not allow others to tailgate. Do not share any information regarding your company over social media website. User shall keep latest version of antivirus on their endpoints. Lock your computer screens when stepping away from the desk. Never leave any document around printers. कई बार होता है प्रिंटर पे प्रिंट करके चले गए, वो ले आएंगे हम लंच करने जाएंगे तो तब तक तो हैकर ही ले जाता है उठा के ठीक है। तो नेवर लीव एनी डॉक्यूमेंट अराउंड प्रिंटर. सेंसिटिव डॉक्यूमेंट मस्ट बी kept logged in secure cabinet. Expired, scrapped and unwanted copies of document must be shredded. shredder है अपने पास यहाँ पे, हाँ तो shredder में shred करना है उसको. Password must not be left on sticky notes. sticky note पे लोग password लिख देते हैं कई बार. Nor may be left written down in an accessible location. Whiteboards containing restricted and sensitive information must be erased. Even इसमें क्या है, मैंने एक बार मेरे साथ ही हुआ था, मैं जा रहा था एरोप्लेन पे, जब चढ़ा पीछे बंदा बैठा है, ओ टेंडर मिल गया मेरे को, अरे वो मेहता साहब है ना वहाँ खाते हैं, अपना कंपनी का नाम भी बोल दिया उसने, हाँ यहाँ से मिल गया, अरे खा पी के सब हो गया, अरे इतने पैसे दे दिए, सब मामला निपट गया। कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन वो बता रहा है अपने बॉस को कि ऐसे ऐसे हो गया, और मैं सुन रहा हूँ अच्छा ये इस कंपनी में ये बंदा खाता है और ये कंपनी है। मतलब कभी भी अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन, ट्रेन में जगह देख लो कहाँ पे खड़े हो, आराम से बात करो मतलब वही बीच में बैठ के बातें कर, मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई, राइट। तो ऐसे को मैं सुन रहा हूँ तो और भी सुन रहे होंगे, और लोगों ने अप्रोच किया होगा फिर जो भी किया होगा। Guess the different types of infosec gaps attacks in below pictures. Tailgate, वो सिस्टम छोड़ के गया हुआ है, ये देखो वो पीछे मुड़ के देख रहा है, वो इसको शोल्डर सर्फिंग कहते हैं, शोल्डर सर्फिंग कर रहा है। वो देखो वो अपना जो है क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन डाल रहा है वहाँ, ठीक है। तो दिस वाज द एंड ऑफ द ट्रेनिंग. So these are our different locations. We have offices. Thank you so much. Thank you so much. तो सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे जिन जिन्होंने आंसर दिया है, सब ने दे दिया वैसे तो सबके नाम दे देना मेरे को है क्या ईमेल ईमेल पे, हाँ एक लिंक आएगा, इस पे क्लिक करो और इस पे क्लिक करो और आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा. No, we will really send you certificates. हाँ, you put the okay. तो आपको अच्छी ट्रेनिंग लिया आपने, पता लग गया है. अगली बार आप हैकिंग अटैक ना करने लग जाना कहीं. Thank you, sir. Thank you, sir, for the wonderful insight. And there are one key word that I would like to bring upon: that zero trust and always verify. Never trust. Never trust. And thank you, sir. On behalf of the corporate office, vigilance department, and ALCO, I sincerely express our gratitude to the speaker of the session today for taking the pain to address all of us here and enlightening us on the facts of cybersecurity. Once again, thank you, sir. My pleasure. My pleasure. I would also express our sincere gratitude to our respected director, sir, for sparing the time, and our sincere gratitude to the system department, administration, PRCC, maintenance department,
in helping us to host and broadcast the seminar today. And at last but not least, we express our deep gratitude to the audience for participating in the seminar to make it a grand successful. I once again thank you all. Thank you for the day. So what is the mantra which I have given you? Never, always verify. This will, ये जो है आपको हर अटैक से बचा देगा, हर अटैक से. कभी ट्रस्ट नहीं करना, वेरीफाई करो कि हाँ बंदा सही है नहीं. हैं? No. But because in 10 months still what is our rating and on that basis no